Ji, Assalamu alaikum students. Uh, Today we are going to start with the chapter number 13, Unit 2, Human Resource, further Human Resource Management. AS का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्स उसी का ये फर्दर चैप्टर जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह के एएस में आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्टडी किया, जैसे कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, providing the training and development to employees, hiring, firing, dismissal, writing the contract of employment, offering the work-life balance, all the issues जो हमने chapter number 12 AS में हमने deal किए. Now we are going to study the next chapter that is relevant with the previous chapter, further human resource management. चैप्टर नंबर 13 ये A2 का चैप्टर है, ये पेपर 3 के लिए वैलिड होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द concept, the contract of employment, the types of. First of all, we divide the contract of employment is a legal document that sets out all the terms and conditions between the employee and the owner, employer. Employment contract एक legal, इसको लिखना, इसको employee को देना, इसको signed by the employee is necessary. So first of all, we divide the contract of employment into two types: soft HRM and hard HRM. Hard human resource approach, soft human. At the end हम इसको evaluate करेंगे कि further business के अंदर वो आपको कौन सा सूट करेगा, rather hard human resource सूट करेगा or using the soft human. Hard HRM is an approach of managing employees, is an approach that treats employees as a resource, like a factor of production, like machinery. So while you are treating your employees like machinery, focuses on cutting cost, increased flexibility, and offering only two types of employment contracts इसमें offer किए जाएंगे. Offering only part-time employment contract and temporarily employment contracts. सॉफ्ट के बारे में चलते हैं, फिर इन दोनों को दोबारा से एलैबोरेट करेंगे. सॉफ्ट ह्यूमन रिसोर्स इज एन अप्रोच ऑफ मैनेजिंग एम्प्लॉय that treats employees as the most important factor of production, as the most important resource. As the most important resource of a business organization, offering, providing training and development, hire permanent employees so that they become skilled and stay with the firm.
It is very easy to differentiate between both of the terms that treat employee as just like a machinery, focuses on cutting cost. आप सिर्फ पार्ट टाइम हार्ड ह्यूमन रिसोर्स एचआर में आप वर्कर्स को हायर करते हैं, सिर्फ पार्ट टाइम वर्कर्स को या टेम्परेरी बेसिस पे हायर करेंगे, उनको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया जाएगा. एंड व्हेनेवर द बिजनेस डू नॉट नीड द एम्प्लॉइज, उनको फायर कर दिया जाएगा. अकॉर्डिंग टू द नीड आप उनको हायर करें, जैसे कि आपके सामने है सीजनल बिजनेसेस आर देयर. सीजनल बिजनेसेस में आप सीजन के अकॉर्डिंगली हायर करें और जैसे ही सीजन ऑफ होता है आप उनको फायर कर सकते हैं. हार्ड ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताया गया है. इसके बाद सॉफ्ट इज एन अप्रोच ऑफ मैनेजिंग हायरिंग एम्प्लॉइज दैट हायर परमानेंट कोर एम्प्लॉइज, offering providing the training and development to these people, offering permanent employment contract so that they can stay, they are motivated. ये सुबह आएंगे और ये सारा दिन आपके साथ काम करेंगे, हमेशा बिजनेस के साथ स्टे करेंगे. अब इसमें इन एम्प्लॉइज को एक सर्कल बनाया जाता है और इन सारे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स हैं इसको कैटेगराइज कर लिया जाता है दो हिस्सों में. सबसे पहले एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ किया जाता है. इस स्मॉल सर्कल के अंदर सॉफ्ट ह्यूमन अप्रोच को लिखा जाता है. दैट इज कॉल्ड कोर एम्प्लॉइज. कोर एम्प्लॉइज आर as you know the permanent employees. ये सिर्फ इस सर्कल के अंदर एक ही टाइप आएगी, the permanent employees, जो कि आपके पास हमेशा स्टे करेंगे और किसी दूसरी फर्म में दैट विद इन द टाइम पीरियड किसी दूसरी फर्म में जॉब नहीं कर सकते. इसके बाद दूसरा सर्कल ड्रॉ किया जाएगा जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को लिखा जाएगा, जिसमें सबसे पहले आप कह सकते हैं इसमें आज हम पार्ट टाइम के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. Temporary employment contract, flexible employment contract, flexi time employees, outsourced employees, outsourced, teleworking, zero or contract. ये सारे एम्प्लॉइज के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की टाइप्स हैं जो कि आप लिख सकते हैं. कोर एम्प्लॉइज आर कॉल्ड द परमानेंट. ये आपके पास परमानेंट एम्प्लॉइज है जिनको आप परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि आपने एएस में पढ़ा था कि आप इनको फायर करने से पहले यू हैव टू गिव अ नोटिस पीरियड, 30 डेज नोटिस पीरियड आपको देना पड़ेगा और एक लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू आप इनको फायर कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गिव अ वार्निंग, इशू अ वार्निंग लेटर, देन सेकंड वार्निंग लेटर एंड देन a dismissal letter along with the notice period. ये कोर एम्प्लॉइज के साथ प्रोसीजर है. पार्ट टाइम और टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रोसीजर नहीं. ये प्रोसीजर इस तरीके से फॉलो किया जाता है कि जिस ड्यूरेशन का कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा उस ड्यूरेशन के बाद ऑटोमेटिकली उसकी जॉब जो है वो खत्म हो जाएगी. So now there is a time to compare between दोनों के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स को कंपेयर करने का वक्त है. Benefits of soft approach. If you are using a soft approach, what are the benefits and benefits of using hard human resource management, hard HRM. Human resource management भी लिखा जा सकता है और HRM भी लिखा जा सकता है. Benefits of soft. One by one इसको डिस्कस करते हैं. First of all, the flexibility. Flexibility of multi-talented employees. वो employees जो the people they are able to perform more than one task. These people are called the multi-talented people. Soft HR में हमें ये multi-talented approach मिलेगी या hard HR में? Obviously आपको ये नजर आ रहा है कि according to hard HR आप वर्कर को हायर करेंगे, उसके टैलेंट को यूज करेंगे और जब उसका टैलेंट नहीं चाहिए आप उसको फायर कर देंगे और उसकी जगह ऑल्टरनेटिवली एक वर्कर आ जाएगा. तो ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मिलेगा हार्ड ह्यूमन रिसोर्स में. मैं एक ऑप्शन आपके सामने रखूंगा. वी डू नॉट हैव द फेस टू फेस कांटेक्ट, बट मैं एक ऑप्शन आपके सामने रखूंगा एंड यू हैव टाइम टू थिंक अबाउट
कि इस ऑप्शन को किस में लिखा जा सके। एम्प्लॉयज ज्यादा मोटिवेटेड होंगे एक अप्रोच में, क्योंकि उनको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ऑब्वियसली ज्यादा बेनिफिट्स ऑफ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बेनिफिट्स ज्यादा ऑफर किए जाएंगे. You already studied about the fringe benefits are the various collection of different benefits given to the employees other than the financial reward. Salary के अलावा वो किस अप्रोच में ज्यादा दिए जाएंगे, आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो सॉफ्ट एचआर में. सो हायर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स इसमें कंपैरेटिवली सॉफ्ट में ज्यादा होंगे. ये भी किया जा सकता है हाउ द फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हार्ड में बहुत कम रखे गए जबकि सॉफ्ट में रखे गए. ओके, एक्सेप्टेड. बट फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स को कैसे मैनेज किया जाएगा एंड हाउ द फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आर ग्रेटर देन दिस अप्रोच. अप टू सम एक्सटेंट जो कोर एम्प्लॉइज हैं इनका वेज पर और वेज पीस रेट जिसे आप या टाइम रेट जिसे आप कह सकते हैं एएस की लैंग्वेज में, कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है. ऑल्दो कि इट इज नॉट फेयर, सुनने में फेयर नहीं लग रहा, बट इनका फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स माइट बी कंपैरेटिवली हार्ड ह्यूमन रिसोर्स से ज्यादा हो सकता है. व्हाट अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन? एवरी फर्म हैज एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और ऑब्वियसली ये बेनिफिट सॉफ्ट एचआर में तो नहीं मिलेगा. उसमें आप परमानेंट वर्कर हायर करते हैं एंड यू प्रोवाइड द मच ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू दीज पीपल. आप उनको पे करते हैं, आप उनके कैरियर डेवलपमेंट प्लान के बारे में सोचते हैं. सो कॉस्ट रिडक्शन का बेनिफिट आपको मिलेगा हार्ड ह्यूमन रिसोर्स में. बेनिफिट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टी टैलेंटेड एम्प्लॉइज. एम्प्लॉय का बेनिफिट बिजनेस को भी ऑब्वियसली जाएगा. मल्टी टैलेंटेड एम्प्लॉइज, मल्टी स्किल्ड एम्प्लॉइज आपको मिलेंगे. मोटिवेशन, ग्रेटर मोटिवेशन. क्या हार्ड एचआरएम के वर्कर्स जो है वो मोटिवेटेड नहीं होंगे? ऑब्वियसली, बिकॉज दे आर हायर्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड. माइट बी दे आर नॉट एज मच मोटिवेटेड एज सॉफ्ट एचआर वाले जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं. इनके पास फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों बेनिफिट ज्यादा हैं. इनके पास ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं. इनके पास जॉब सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू लेस जॉब सिक्योरिटी. ऑल्दो नो जॉब सिक्योरिटी भी लिखा जा सकता है. लॉयल, परमानेंट, easy to hold meetings. इनके साथ ये आपके एम्प्लॉयज हैं जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं और ये लॉयल हैं और इनके साथ मीटिंग्स को कंडक्ट करना ज्यादा इजी है. मोस्ट ऑफ द टाइम इनके साथ जो लीडरशिप स्टाइल यूज किया गया है वो यूज किया गया है डेमोक्रेटिक. अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें, so these are the people by using the soft HR it is possible to participate employees in the decision making process. उनके आइडियाज, उनके सजेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं. बट इन हार्ड ह्यूमन रिसोर्स इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट यूजिंग ऑटोक्रेटिक अप्रोच. टेक और लीव, आप काम करें या अगर आपको काम पे या आपको जॉब की कंडीशन पे, अपने फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स पे, ट्रेनिंग के ना प्रोवाइड करने पे कोई अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो टेक और लीव अप्रोच है. आप जा सकते हैं अगर आप जॉब नहीं करना चाहते. सो अब चलते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट की तरफ. पार्ट टाइम और टेम्परेरी को एक्सप्लेन करते हैं, इनके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स की तरफ जाते हैं. अभी जो हमने कंपैरिजन किया है वो सॉफ्ट अप्रोच का किया और हार्ड अप्रोच का किया. एट द एंड हम जरूर इसको इवैल्यूएट करेंगे कि हमारे बिजनेस के लिए कौन सी ज्यादा बेहतर है. आज के जमाने में सॉफ्ट ज्यादा बेहतर है या हार्ड ह्यूमन रिसोर्स बेहतर है, या दोनों का कॉम्बिनेशन बेहतर.
सो व्हाट इज मेंट बाय पार्ट टाइम एम्प्लॉयज? पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कोर एम्प्लॉयज अभी आपने रिसेंटली सॉफ्ट अप्रोच पे पढ़ा है, इसका फुल वर्किंग टाइम, वर्किंग वीक जिसे आप कहते हैं, कितने आवर्स का होगा? नॉर्मली 8 आवर्स अ डे। डेली आप अपने वर्कर से 8 आवर्स काम ले सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 वर्किंग डेज। सैटरडे संडे को आप लीव कर दें, 8 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये 48 आवर्स बनते हैं। परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए वी ऑफर 40। किसी कुछ ऐसे कंट्रीज है जिनमें 5 वर्किंग डेज हैं तो वो 40 आवर्स के साथ मैनेज होगा। सो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज का मतलब क्या है? क्या है? कोई फिक्स टाइम पीरियड है? पार्ट टाइम एम्प्लॉयज पार्ट टाइम एम्प्लॉयज या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी लिखा जा सकता है, is the type of contract that is less than full working week. Obviously you already know about the full working week, 48 आवर्स मैंने आपको जैसे कि गाइड किया है। तो लेस देन फुल वर्किंग वीक, तो इसमें कुछ सेट टाइम पीरियड नहीं होगा। इसमें हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, से हम इसको हाफ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए होगा, इसमें कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 24 आवर्स आपने पार्ट टाइम में ऑफर किए, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं, इसकी फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स जाते हैं, जो यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ते हैं, उनको हाफ देन द फुल वर्किंग वीक ऑफर किया जाता है ताकि वो जॉब भी कर सकें और अपनी स्टडी के लिए जो अर्निंग्स हैं वो भी कर सकें। सो 24 आवर्स। इसी तरह टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या फर्क है? is that type of contract is the type of contract that lasts for a fixed time period. क्या इसका कोई स्टैंडर्ड टाइम पीरियड डिसाइड किया गया? नहीं। जिस तरह उसका 24 आवर्स एक एग्जांपल के तौर पे लिया गया था, इसका भी एक एग्जांपल के तौर पे लिया जाएगा। कोई फिक्स नंबर ऑफ आवर्स को ऑफर नहीं किया जाएगा। फिक्स से 6 मंथ्स, 6 माह, 6 माह का या 3 मंथ्स का, 1 वीक का, 15 डेज, 12 मंथ्स, वट एवर यू वॉन्ट टू ऑफर, ये ऑफर किया जाता है। और जैसे कि वो ड्यूरेशन टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, सीजनल वर्कर 6 मंथ्स एम्प्लॉयज, यू नो 6 मंथ एम्प्लॉय, जैसे ही वो सीजन ऑफ होगा, 6 मंथ्स एम्प्लॉय, उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यू हो जाएगा और उसको कहना नहीं पड़ेगा कि यू हैव टू सर्व द नोटिस पीरियड, 30 डेज आपको सर्व करे फिर आप चले। नो, contract of employment is ended according to the document written, say 6 months. Yes, there are certain types of benefits. The benefits are common about the temporary. Most of the time these benefits जो कि मैं लिखने लगूँ, ये पार्ट टाइम के लिए सजेस्ट किए जाते हैं, टेम्परेरी के लिए भी इसमें लिखा जा सकता है। benefits of पार्ट टाइम एम्प्लॉयज, आप इनको कॉल करें पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को, इनसे अपनी जॉब परफॉर्म करें और इनको फारिग कर दें। Benefit of part-time employee. The first benefit, the staff can be called particularly in busy time period. Busy time period, एक वर्ड मैंने busy time period लिखा है और एक वर्ड मैंने slack time period लिखा।
बिजी टाइम पीरियड में कॉल किया जाता है स्लैक टाइम पीरियड में कॉल। स्लैक टाइम जैसे बैंकिंग आवर्स हैं वो 9 बजे से 10 बजे तक वहां पे कम लेस नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे। पिज्जा शॉप में आप चले जाएं तो आपको 3 to 4 और 5 o'clock ज्यादा कस्टमर नजर नहीं आएंगे, जबकि आप अगर 7 to 8 जाते हैं तो बिजी टाइम पीरियड में आप एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज को कॉल कर सकते हैं। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज होंगे, कुछ एम्प्लॉयज आपके पास परमानेंट होंगे और कुछ एक्स्ट्रा स्टाफ आप हायर करेंगे पार्ट एज अ पार्ट टाइम। बिजी टाइम पीरियड स्लैक टाइम पीरियड में आप इनको हायर नहीं करेंगे। एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय can be calculated, can be measured before offering to full-time employees, full-time employment contract. Sickness and absenteeism. अगर आप किसी एम्प्लॉय को परमानेंट जॉब ऑफर करना चाहते हैं, इफ यू नीड सम परमानेंट एम्प्लॉयज यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम द पार्ट टाइम। ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है रादर देन हायरिंग फ्रॉम आउटसाइड। आप एक इंटरनल जो कि पार्ट टाइम है और वो बेस्ट है आपके लिए, आप उसको हायर कर सकते हैं। यू कैन ऑफर द परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू दैट एम्प्लॉय जो कि पार्ट टाइम में बहुत अच्छा काम कर रहा है। सो एक अच्छे एम्प्लॉय को फाइंड आउट करने का ये बड़ा जबरदस्त तरीका है। सिकनेस एंड एब्सेंटिज्म, अगर कोई वर्कर वक्ती तौर पे बीमार है या एब्सेंट है तो उसकी जगह आप पार्ट टाइम वर्कर्स को हायर कर सकते हैं। दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर सर्टेन टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। लाइक वो कौन से एम्प्लॉयज हैं? सबसे पहले तो ये पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत जबरदस्त है, आइडियल, दैट इज आइडियल फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी भी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं और वो अपनी जो जॉब है उसमें कुछ अर्निंग्स भी कर सकते हैं। स्पेशली पर्टिकुलरली आइडियल फॉर स्टूडेंट्स, parents with young children, and old age people. Old age people जो सारा दिन जॉब नहीं करना चाहते, they don't have the ability to perform the whole day job. Young children, parents with young children, वो parents जिनके बच्चे छोटे हैं और वो साथ जॉब भी करना चाहते हैं, and they also need to care about their kids, और ये उनके लिए suitable है and students के लिए suitable है। Sometimes there are certain type of, पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे employees होते हैं जॉब करते हैं लेकिन उनकी जॉब इज नॉट इनफ टू फुलफिल दी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो वो 2 जॉब्स को कंबाइन कर लेते हैं जिससे उनके एक्सपेंसेस को मैनेज करने में। द पीपल हु वांट टू कंबाइन, who want to join 2 jobs at the same times to earn extra money। इसमें एक सवाल, एक क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि शुरू में मैंने कहा था कि कुछ एम्प्लॉइज जो परमानेंटली जॉब करे वो किसी दूसरी जॉब में जॉब नहीं, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे लिखा गया कि तू परमानेंट एम्प्लॉय जॉब कर सकता है और जॉब नहीं भी कर सकता। इसका सही आंसर ये है कि जो पर्टिकुलरली टाइम पीरियड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में परमानेंट का लिखा गया, से एग्जांपल से समझाता हूँ, उसको टाइम पीरियड दिया गया कि 9 to 5 आपने एक जॉब में आना है। 9 to 5 वो कहीं जॉब नहीं कर सकता, लेकिन 5 o'clock के जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के वर्किंग आवर्स कंप्लीट होते हैं उसके बाद वो कहीं जॉब कर सकता है, दैट इज अलाउड। तो ये उस जॉब के बारे में बात की गई है जिसमें वो 2 जॉब्स को कंबाइन कर सकता है। सुबह वो कोर एम्प्लॉय है किसी फर्म का, शाम को वो किसी पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, 2 जगहों से वो अर्न कर रहा है और वो अपनी इनकम को मैनेज कर रहा है, अपनी फैमिली एक्सपेंडिचर को पूरा कर रहा है। And the drawbacks of part-time employees. Certain types of employees which are considered to be the part-time employees, they have certain drawbacks, such as it is very difficult to hold meetings with these type of people. ये लोग आते हैं, अपनी जॉब परफॉर्म करते हैं, अपनी जॉब करके बिजी टाइम पीरियड में आते हैं और चले जाते हैं। So it is not possible for managers to hold different types of coordination meetings with these kind of employees.
difficult to manage these type of people, इनको manage करना मुश्किल है, and to hold coordination meetings with these people, these employees, the part-time employees. They are less motivated because they are not earning as much as the full-time employees. इनकी salary, इनके financial rewards जो हैं वो comparatively core employees से different है, तो obviously इनके financial reward less financial rewards. So these less financial rewards also affects the motivation level as well. They are demotivated. That affects the motivation level of these people. So now come to the other, ये जो next मैंने आपको नीचे 4 points लिखवाए हैं, इनको study करते हैं. We are very clear about the part-time and the temporary employees. Now come to the flexi-time employee, flexi-time sheet. Flexible employees. What are these? Flexible employees या flexi-time employees क्या है? Flexi-time employees, employment contract. Is the type of contract that allows staff, employees to be called at the time which is most convenient for two types of people. Most convenient, किसके लिए convenient है ये type of contract? Most convenient for employee and employer. Flexible employees. There are certain types of employees in the market. They are very expensive employees. It is not possible to offer a permanent contract to these kind of people. इसकी example मैं आपको देता हूँ. Sometime lawyer या doctor, ये बड़े expensive employees हैं. आप इनको permanently hire नहीं कर सकते. Flexi time employment contract is that जब आपको उनकी जरूरत है, आपने उनको hire नहीं करना, उनकी services को hire करना है, उनको कॉल करना है, उनकी सर्विसेज का उनको पे करना है और वो चले जाएंगे. सो दिस इज द वे टू मैनेज द मोस्ट एक्सपेंसिव पीपल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, द कंप्यूटर एक्सपर्ट्स. अब कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को आप देख ले फ्लेक्सी टाइम. देयर आर टू वेज. यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आप कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को परमानेंटली हायर करें. अगर आपके कंप्यूटर्स में हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो वो परमानेंटली हायर है और आपके बिजनेस में बैठे हैं और दे आर नथिंग टू डू विद. आप उनको जब कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, कोई सॉफ्टवेयर वायरस की जो इंस्टॉलेशन है उसके लिए कॉल करें, हार्डवेयर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कॉल करें, फ्लेक्सी टाइम पे कॉल करें और उनको चार्ज जो भी वो करते हैं उनको पे करें. फ्लेक्सी टाइम एम्प्लॉय the most common examples are the doctors. The most common example, doctors को आप कॉल करते हैं, डॉक्टर से सर्व करवाता है हॉस्पिटल और डॉक्टर. There are 3 types of stakeholders raise the benefit of these flexi time. डॉक्टर को उसकी फी मिल गई, हॉस्पिटल को उनकी कमीशन मिल गई और जो पेशेंट है उसको डॉक्टर मिल गया. तो flexi time employment contract is ideal for highly skilled people, highly skilled, highly professional, and these people are not possible to hire permanently. Last 2 terms, outsource, teleworking and zero hour. कितना टाइम है अभी? कितना नहीं है अभी, 3 टर्म्स हैं. 5 मिनट्स मिल जाएंगे. लास्ट 5 मिनट्स.
ठीक है. So outsourcing employees, teleworking, and the last one, zero hour contract. So these are very simple. Do not hire the employees permanently, outsource employees. The employees are hired from outsource agency, outsource organization. अगर आपको किसी प्लम्बर की, किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट की, किसी लॉयर की जरूरत है, आप उनको डायरेक्टली कॉल ना करें. आप उन इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है, आपको टेक्नीशियन, आपको मशीन रिपेयर करने वाले की जरूरत है, आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करें. दे सेंड एम्प्लॉयज टू योर फर्म. आपने उस फर्म को पे करना. सो दीज पीपल आर कॉल्ड द आउटसोर्स एम्प्लॉयज. टेलीवर्किंग, आजकल जैसे आप देख रहे हैं, टेलीवर्किंग, स्टाफ सिटिंग एट होम वर्किंग फॉर अ बिजनेस. दे आर लिंक्ड विद द कम्युनिकेशन मीडिया, लाइक इंटरनेट की जरूरत होगी आपको, कंप्यूटर्स की जरूरत होगी, स्टाफ के साथ लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट होगा आपके पास. और आप आजकल जिस तरह कोविड-19 वायरस की वजह से बहुत सारा दुनिया में टेलीवर्किंग का कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसान हो गया. मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो घर से काम करते हैं अपने ऑफिस के लिए. जीरो और कॉन्ट्रैक्ट भी आजकल के कोविड-19 में बड़ी अच्छी एग्जांपल है, बिकॉज जो ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में चल रही है एंड बिजनेसेस डू नॉट हैव द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. सो जीरो और कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ और no employment contract is offered. Staff will be called when the job is available. Simple कहा जाता है कि आप चले जाएं. We do not offer any salary, financial reward. हम उस वक्त आपको कॉल करेंगे जब आपकी जरूरत होगी. मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी जिसमें रिसेशन है वहां पे जीरो और कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाता है. So this is the whole about the types of contract today we studied. If you want to ask any question, we have a session right after 5 minutes where you can ask your queries, your questions. Thank you.